Hello everyone, welcome to our channel The Ethical Bureaucrat by Educrat IS Academy. We were doing ethics, integrity and aptitude. Abhi tak we have completed first chapter, that is ethics and human interface, then attitude, फिर aptitude and foundational values, emotional intelligence, contribution of moral thinkers and philosophers, and our last chapter was public civil service values and ethics in public administration. Very important. Now in this particular lecture we will complete our last chapter, that is probity in governance. देखो ये टोटल चैप्टर 1 to chapter 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग. अगर ये सातों चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, इसके नोट्स बना लेते हो एंड उसको बार बार रिवाइज करते हो, देन ओनली यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस of case studies, जिसके लिए we will have a session, a comprehensive session by sir, right? So let's start with our next chapter, probity in governance. Now let's start with a question, that why do people lose trust in governments? Many times I have talked about trust, है ना, कि ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, वो बहुत बड़ा चीज. सो व्हाई डू पीपल लूज ट्रस्ट इन गवर्नमेंट? ऑफन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसीज, है कि नहीं? इंडिया हैज ग्रेट पॉलिसीज फ्रॉम सर्व शिक्षा अभियान to digital India. But when benefits don't reach people or when corruption eats fund, तब क्या होता है? तब लोगों का ट्रस्ट टूटता है. तो क्या ट्रस्ट ये बैड पॉलिसीज के कारण टूट रहा है? नहीं ना. पॉलिसीज कहाँ बैड है? पॉलिसीज तो अच्छे हैं. पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ प्रॉब्लम, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड प्रोबिटी. तो अब बात तो ये आता है कि फिर ये प्रोबिटी है क्या, राइट? प्रोबिटी मीन्स अपराइटनेस, प्रोबिटी मीन्स फेयरनेस, प्रोबिटी मीन्स incorruptibility in public life, right? Imagine this probity now as a like a moral filter, and you very well know filter क्या काम करता है. Every time a decision passes through this filter, selfish motive are removed and only public interest remains, right? Now let's discuss the difference between honesty, integrity and poverty. Probity. Honesty means if I am saying I don't lie. For example, returning extra change at a shop. What is integrity? Integrity is I'm sticking to my values even under temptation. That is refusing a bribe even when no one is watching. That is integrity. What is probity then? Probity is honesty plus integrity plus incorruptibility in public service. For example, an IS officer not only refuses bribes but also create a transparent e-procurement system so corruption become impossible. This is probity. And so here you can use the quote given by Thomas Jefferson, that honesty is the first chapter in the book of wisdom. And इसी quote को, honesty is the first chapter in the book of wisdom, इसी quote को आप थोड़ा बहुत modify करके आप probity एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करके आप बना सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो. ये इनोवेशन आप दिखा सकते हो एग्जामिनर. सो थॉमस जेफरसन के हिसाब से ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम. एंड प्रोबिटी क्या है? प्रोबिटी इज दैट ऑनेस्टी tested every day in governance. For example, Dr. APJ Abdul Kalam lived so simply that he left Rashtrapati Bhavan with just 2 suitcases. No misuse of perks, no hoarding of wealth, pure service. And so we need to keep in mind that probity is not optional. Probity is foundation of trust between government and citizens. Probity is like oxygen for governance. Without it, the system suffocates. And why this probity matters? Because I have already told you कि probity होगा तो system में लोगों का क्या होगा? Trust होगा. Citizen follow the rules only if they believe government is fair. If they see bribes everywhere, they stop respecting laws. Probity ensure क्या करता है? Probity ensure करता है fairness. It ensure everyone, वो गरीब हो, अमीर हो, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. प्रोबिटी है तो प्रोबिटी इंश्योर करता है efficient use of resource. India spends lakhs of crores on welfare. Without probity, much is lost to corruption. प्रोबिटी इंश्योर करता है लेजिटिमेसी. अ करप्ट गवर्नमेंट लूजेस मॉरल अथॉरिटी टू रूल. एंड सो एक बार प्रतिभा पाटिल हमारी पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था दैट corruption is the enemy of development. You can use this quote, right? Corruption is the enemy of development
and of good governance. It must be got rid of. This is by Pratibha Patil. 2G spectrum case, 2G spectrum scam showed what happens without probity. Arbitrary telecom license allocation caused massive losses. यहाँ पे क्यों हुआ? बिकॉज प्रोबिटी का कमी था. अब आप इसी को देख लो थोड़ा सा ये जनधन योजना से, जहाँ पे डीबीटी ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने क्या किया? लीकेज को कम किया. मतलब क्या हो रहा है? We are ensuring probity through digital system, है कि नहीं? So without probity, laws and policies fail करेंगे. With probity, democracy, very important. With probity, democracy earns legitimacy, very important. Legitimacy. With probity, democracy earns people's trust, very important. Clear? So what all is written here? Importance of civil service to governance, strong national presence and cohesion. Civil services provide leadership, ensure continuity across various governance level. पब्लिक सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू सिटीजन. तभी तो ना पब्लिक सर्विस. एंड कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का बात हो रहा है? लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक यूटिलिटीज. एंड पब्लिक सर्विस में सक्सेस कब होगा? मतलब कब आप कोई पब्लिक सर्विस को सक्सेस कहोगे? जब वो अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो, राइट? व्हाट इज प्रोबिटी देन? इट रेफर्स टू हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, honesty, decency. This probity is beyond corruption. Also involves impartiality, accountability and transparency. And अगर democracy में है तो it ensure equality, है कि नहीं? Before law and respect citizens' right. समझ में आया? So probity is honesty plus integrity plus incorruptibility. Probity means uprightness, fairness, incorruptibility in public life. It's like I have already told you, it's like a moral filter. There are certain principles of probity. That is, I can say probity rests on 6 strong pillars. If this is my probity, it rests on 6 strong pillars. First is transparency. That is, decisions are open to public scrutiny. Second is accountability, where every officer must justify their action. Third is impartiality. That is, no favoritism, equality for all. Fourth is integrity, values upheld even under pressure. Fifth is responsibility. Action must serve citizens, not self-interest, not personal motives. Sixth one is public interest orientation. That is, people's welfare first, and this should be your first target, first goal always. तो ये कुछ 6 पिलर हैं जिस पे प्रोबिटी रेस्ट करता है. कौन कौन सा? ट्रांसपेरेंसी, accountability, impartiality, integrity, responsibility, and the last one, sixth one, is public interest orientation. For example, the Delhi Metro project under E. Sridharan followed transparency, followed deadlines. एंड इसीलिए यहाँ पे कोई भी आपको मेजर करप्शन चार्जेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे. एंड ये सब जानना पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड टू नो दैट पब्लिक ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट. एंड सो दीज 6 पिलर्स होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एथिकल गवर्नेंस. आप एक को हटा दो एंड आपका बिल्डिंग जो है ये डगमगाने लगेगा. क्या क्या है ये 6 पिलर? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंपार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेशन. तो इसको याद कर लो ऐसे, ताई IRP या RIP ताई. क्लियर? क्योंकि अच्छे कीवर्ड्स है ना, कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. नाउ प्रोबिटी हैज इवॉल्व्ड अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम. लाइक ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कैसा दिखेगा? तो रूल बाउंड, बिकॉज ट्रेडिशनल है तो बहुत नियम कानून से बंधे होंगे, हायरार्कल होंगे. तो यहाँ का प्रोबिटी क्या होगा? यहाँ पे प्रोबिटी इज इक्वल टू फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स स्ट्रिक्टली. यहाँ का प्रोबिटी ये होगा. आप किसी चीज का इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो यहाँ हम लोग किसका इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं? प्रोबिटी का. पहले ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले रूल बाउंड हुआ करते थे, हायरार्कल होते थे, वहां पे प्रोबिटी का मतलब क्या होगा? फॉलोइंग रूल्स स्ट्रिक्टली. फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल सिविल सर्विस. फिर आया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस फोकस वॉज ऑन डेवलपमेंट. सो यहाँ पे प्रोबिटी का मतलब क्या होगा बताओ? यहाँ पे प्रोबिटी का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? डिलीवरिंग वेलफेयर एफिशिएंटली. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन. फिर बात आता है राइट
जैसे ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, स्टेटस को है ऑब्वियसली, चेंज रिजल्ट ओरिएंटेड है, हायरार्कल होगा, रिजिड होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, फ्लेक्सिबल, यहाँ आपको एफिशिएंसी और इकोनॉमी, यहाँ इफेक्टिवनेस एंड गोल अचीवमेंट का बात पे फोकस रहेगा, राइट। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट ना। नेक्स्ट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, इसी पे और क्या हुआ, एडेड फोकस ऑन सोशल इक्विटी। तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे प्रोबिटी का मतलब क्या हो जाएगा, फेयरनेस प्लस जस्टिस। फिर आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जहां बात होगा किसका, एफिशिएंसी का, जहां बात होगा परफॉर्मेंस का, जहां बात होगा कंपटीशन का। सो यहाँ पे प्रोबिटी इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी प्लस परफॉर्मेंस ऑडिट। फिर बात आएगा न्यू पब्लिक सर्विस का, दिस इज टुडेज मॉडल। यहाँ पे क्या है हिसाब किताब, यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो कैसा है, तो सिटीजन फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रोबिटी क्या होगा, यहाँ पे प्रोबिटी होगा सर्विस ओरिएंटेशन, पार्टिसिपेशन। फिर आता है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट ओरिएंटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, मिशन ड्रिवन सर्विस डिलीवरी। कैसे, थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। देखो, वी जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट द purpose of public administration is to serve. For example, Digital India Service Center embodies this न्यू पब्लिक सर्विस, NPS, जहां आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा, जहां आपको सर्विस फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट का बात आएगा। सो ये क्यों बताना जरूरी था, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नहीं। ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, ये सब मॉडल आपको पढ़ना समझना जरूरी था क्या, एकदम नहीं। ये बताना सिर्फ ये मतलब इतना सा था, मॉडल चेंज करेंगे, इवोल्यूशन होगा, बट प्रोबिटी रिमेन्स द कांस्टेंट मॉरल एंकर। क्लियर। एंड इतना ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, एंड ये जो इतना दिमाग नहीं लगाना, जितना बता दिए हैं क्लास में, that is more than enough. इनको as a keyword answer में use कर लेना is more than enough, right? Now, foundational concepts and transparency, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा social contract theory. Now, please understand that the idea of probity comes from social contract. Thinkers like Hobbes, Locke, John Locke, Rousseau, they said that citizens गिव अप सम फ्रीडम, सिटीजन्स जो है ये अपना कुछ आजादी गिव अप करेंगे, देंगे, एंड इन रिटर्न सिटीजन्स विल गेट प्रोटेक्शन, इन रिटर्न सिटीजन विल गेट सर्विसेज, एंड इफ गवर्नमेंट मिसयूजेस फंड्स और डिनाई सर्विसेज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जो ये सिटीजन्स एंड ये बॉडी के बीच में हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, टूट जाएगा। प्रोबिटी क्या करता है, प्रोबिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है, जीवित रखता है। एंड बहुत मतलब शानदार एक कोट है, दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी। अरे भाई जो है आप सामने रख दो, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो प्रोबिटी आपको समझ में आया, प्रोबिटी क्या कर रहा है, प्रोबिटी इस जो इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रख रहा है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस ट्रांसपेरेंसी इज प्रोबिटीज बेस्ट सेफगार्ड। देयर आर सम इंस्टीट्यूशनल मीन्स to ensure transparency in governance. जैसे for example, CAG reports on coal block allocation exposed irregularities. And so हुआ क्या, CAG ने जब ये expose किया तो लोगों का फिर से विश्वास restore हुआ, that is it restored the accountability. So probity मेंटेन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसको प्रोबिटी मेंटेन रखता है, एंड ट्रांसपेरेंसी इसका सुरक्षा कवच है। ट्रांसपेरेंसी लाइक ओपननेस, कम्युनिकेशन, एक्सेस टू रिलायबल, रेलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन का जरूरत है तब इंफॉर्मेशन का प्राप्त होना। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होता है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर वंस एक्शन। क्या प्रोसीजर हो सकता है, आप ओपन मीटिंग करो, आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन, बजटरी रिव्यू, दीज आर मेथड्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। What is the philosophical basis of governance? First thing we need to understand that public office जो है ना वो एक trust है. The fundamental belief that public servant hold power as a fiduciary
ड्यूटी टू सिटीजन नॉट एज अ पर्सनल प्रिविलेज। अरे भाई नाम पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट। मोदी जी ने क्या कहा खुद को, प्रधान सेवक, है ना, सेवक मने सर्वेंट। ये कोई पर्सनल प्रिविलेज नहीं है सरकारी नौकरी, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्वेंट होना कोई प्रिविलेज वाला बात नहीं होना चाहिए। दिस इज जस्ट टू सर्व द सिटीजन, दिस इज जस्ट टू इंश्योर पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज जस्ट कि आपको एक माध्यम मिले कि आप पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन को आप सर्व कर सको। सो पब्लिक ऑफिस को ना आपको एज अ ट्रस्ट देखना है कि भाई आपको दायित्व दिया गया है कि आप पब्लिक सर्विस करोगे, आप सर्वेंट के रूप में लोगों को सर्व करोगे। सर्वेंट इसीलिए नाम में लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, जन सेवक, राइट। एथिकल फाउंडेशन रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, ड्यूटी, वर्च्यू, एंड वी हैव सीन दिस कि कहां से बात कहां से आ रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से, जहां पे ऐसा समझा जा रहा है कि एक तरीके का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपना कुछ राइट्स देंगे, एंड ये जो बॉडी है, ये जो अथॉरिटी है, ये जो पब्लिक सर्वेंट है, ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये बोल रहा है कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर ना। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. This is a game changer for probity. Through this particular act, citizen can demand information from government. It ended, this right to information act ended secrecy from colonial era. It empowers the ordinary people to check corruption. So to set up practical regime for citizens right to information, to promote transparency, accountability and contain corruption. But you also need to understand one very important angle कि एक तरफ अगर right to act in 2005 है, तो दूसरे तरफ OSA 1923 है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिंपल लाइन, सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछे कि ये क्या कर रहा है, तो ये एक्ट जो है एक सिटीजन को ये व्यवस्था दे रहा है कि ये गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ले। राइट है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस हैं, लेकिन सिंपल भाषा में अगर देखें तो यही तो है कि ये सिटीजन है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। दिस इज राइट टू एक्ट। सो राइट टू एक्ट गिव सिटीजन राइट टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एमिंग टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। जबकि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। जैसे राइट टू एक्ट क्या बोलेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप दे दो, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी का बात है तो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस नहीं देना जरूरी है। एंड सो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन वगैरह हम वर्ड देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे you can very well write that information is the currency of democracy. and अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो ये आपका एक रेडीमेड कोड बन गया जस्ट टू कंक्लूड योर आंसर, एनी आंसर। बट ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू आरटीआई। जैसे आपको बहुत डीले देखने को मिलेगा कि आपने कब अप्लाई किया इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इसमें बहुत डीले। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, अरे रिकॉर्ड अच्छे से है नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे। लैक ऑफ अवेयरनेस, और क्या है, अटैक ऑन आरटीआई एक्टिविस्ट्स, ये कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में क्या हुआ, आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक्सपोज करा घोस्ट वर्कर इन मनरेगा, एमजी नरेगा। हो क्या रहा था, फेक नेम पे पेमेंट्स हो रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसको एक्सपोज करा। So I can very well conclude that RTI is the citizen's weapon to enforce probity, but at the same time it also needs strong protection for activists. Right now, let's talk about code of ethics and code of conduct. Public officials need guidance, है कि नहीं, right or wrong? And that's where codes come in form of code of ethics, code of conduct. Code of ethics मतलब क्या? These are some big principles like integrity, impartiality, professionalism, a statement of core values and aspirational principles that guide the conduct. Focus क्या है, moral values पे। Focus किस पे, commitment to public service. While code of conduct is specific do's and don'ts like asset declaration, like limitations on accepting gifts. So a set of mandatory rules and specific standards that prescribe certain behavior. Compliance and specific behavioral requirement पे फोकस है कोड ऑफ कंडक्ट का। ठीक, तो जैसे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स है
है ना, एंड दीज रूल्स फॉरबिड एक्सेप्टिंग कॉस्टली गिफ्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। सो जहां कोड ऑफ एथिक्स जो है एक तरीके का आपके लिए कॉम्पास के रूप में काम करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक तरीके का रूल बुक है, एंड टुगेदर दे बोथ इंश्योर प्रोबिटी। एंड सो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है, दिस हेल्प यू टू नो व्हाट you have a right to do and what is right to do. This is similar to what we have studied in first lecture, जहाँ पे हमने देखा था that ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. कि भाई हमको ये करने का अधिकार है, very good, but क्या ये करना सही होगा? This is exactly knowing the difference between what you have a right to do and what is right टू डू, कि भले ये अधिकार है लेकिन क्या ये करना सही है। फॉर एग्जाम्पल, हमको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों को हमेशा नीचा दिखाएं, तो दूसरों को नीचा दिखाना कैसा हुआ, अनैतिक काम हुआ ना, अनएथिकल हुआ, लेकिन बोलने का अधिकार तो है। सो एथिक्स अगर पता है तो आई विल नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ARC का कुछ सजेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एथिकल कंडक्ट, that public office should be treated as a trust. We have seen this. Codes of conduct must be direct and simple. Clearly indicate prohibitions कि ये काम आपको नहीं करने हैं, एंड फोकस होना चाहिए सिस्टेमिक चेंज का। सिस्टेमिक चेंज ध्यान आ रहा है? हम कुछ बताए थे आपको कि केस स्टडी होगा, फिर आप ऐसा कुछ लिखोगे। फोकस इज ऑन ट्रांसपेरेंसी, फोकस इज ऑन ई गवर्नेंस, फोकस इज ऑन इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आप सेकंड ARC अपने आंसर में कोट करके आंसर कंक्लूड कर सकते हो। अगर प्रोबिटी वगैरह पे क्वेश्चन आए तो, अगर कोड ऑफ एथिक्स पे क्वेश्चन आए तो, अगर कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन आए तो, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हिसल ब्लोइंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू प्रोटेक्ट प्रोबिटी। A whistleblower, है ना, जिसने सीटी बजाया, is someone who reveals information about illegal, corrupt and unethical practices in an organization, including government. This can be an internal employee or an outside person who has evidence. That person is known as whistleblower. एंड ये विसल ब्लोअर ने जो काम करा उसको कहा जाता है विसल ब्लोइंग। दैट इज ही रिवील्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल, करप्ट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो विसल ब्लोअर का अगर आपसे कोई टाइप्स पूछे तो आप दो बता दोगे, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल, समवन इनसाइड द डिपार्टमेंट, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, हु रिपोर्ट्स टू इंटरनल चैनल्स फर्स्ट। एक्सटर्नल कौन होगा? समवन हु गोज टू अ हायर अथॉरिटी, विजिलेंस डिपार्टमेंट चला गया, लोकायुक्त चला गया, मीडिया के पास चला गया, कोर्ट के पास चला गया। कब? जब इंटरनल चैनल फेल हो गया। Why this whistleblowing matters? Because it reveals the hidden corruption that audits or public scrutiny may miss. It acts as an early warning system. A single brave person can stop a major leak of public money. It supports the idea that public interest is above private interest, is above private gain. What are some कॉमन फॉर्म्स ऑफ रॉन्ग डूइंग विसलब्लोअर एक्सपोज? जैसे ब्राइब टेकिंग, फेक इनवॉइसेस, घोस्ट एम्प्लॉइज, घोस्ट बेनिफिशियरीज, रिग्ड टेंडर्स, फेवरेटिज्म इन रिक्रूटमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब इतना कुछ ये बंदा अगर कर रहा है या ये बंदी कर रही है तो फिर बहुत सारे रिस्क ये भी फेस करते होंगे, लाइक हरासमेंट, लाइक ट्रांसफर, लाइक करियर डैमेज, like legal threats, even very important, physical harm. There are tragic examples, you can study it from internet. And because of this risk, ये whistleblower जो कि public interest को बरकरार रखे हुए है, public services, एक तरीके का पब्लिक सर्विस कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन देना इज क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज नॉट यू नीड टू नो, बट एक बार हम फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लो कोई विसल ब्लोअर है तो उसको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर अ जूनियर ऑफिशियल और अ विसल ब्लोअर? तो सबसे पहला क्या हो सकता है? सबसे पहला होगा डॉक्यूमेंट केयरफुली, दैट इज कीप कॉपीज ऑफ ईमेल, इनवॉइसेस, डेट, नेम्स, उसको बहुत अच्छे से रखना, बिकॉज एविडेंस इज क्रूशियल। दूसरा रास्ता क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा? यूज द इंटरनल चैनल फर्स्ट, अगर वो सेफ है तो। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, फॉलो द प्रोसीजर, स्पीक टू इमीडिएट सुपीरियर, विजिलेंस ऑफिसर, डिपार्टमेंट हेड। तो ये पहला दूसरा स्टेप हो गया कि आपने पहला तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखें, दूसरा आपने इंटरनल चैनल को एक्सप्लोर करा, तीसरा इफ इंटरनल रूट्स फेल और यू फेस इंटिमिडेशन, एस्केलेट, गो टू इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक लोकायुक्त, CAG, कोर्ट, यूज RTI टू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दैट प्रूव रॉन्ग डूइंग। चौथा है
avoid illegal action, that is don't hack system or steal files that can weaken your case. Fifth is try to maintain anonymity if needed, use secure channels or trusted NGOs, legal counsel. ये तो उस विसल ब्लोअर को क्या करना चाहिए, क्लियर। हाउ इंस्टीट्यूशंस शुड रेस्पॉन्ड, तो इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए, तो एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स, हॉटलाइंस विद स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इमीडिएट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तीसरा, कोई एंटी रिटेलिएशन रूल्स होना चाहिए कि प्यूनिटिव ट्रांसफर नहीं होगा, हरासमेंट नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन और कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो इंस्टीट्यूशन लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है विसल ब्लोअर को। इंस्टीट्यूशन रिवॉर्ड देगा, रिकॉग्निशन देगा वेयर एप्रोप्रिएट, अगर किसी विसल ब्लोअर ने अनकवर किया है लार्ज फ्रॉड को। समझ में आया, तो ये कुछ 4-5 काम इंस्टीट्यूशन भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो जैसे आपको क्या जानना जरूरी है कि आप मान लो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो या हेड हो, एंड आपको इस इंस्टीट्यूट में विसल ब्लोअर को लेके या विसल ब्लोइंग को लेके आपको कुछ नियम कानून बनाने हैं, तो आप क्या नियम कानून बनाओगे या आप क्या व्यवस्था लाना चाहोगे, तो आप एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल लाओगे जहां पे एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी एकदम बरकरार रहे, पहला। दूसरा, आप इमीडिएट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन बनाओगे, दैट टू बाय इंडिपेंडेंट यूनिट। तीसरा क्या पढ़ा था हमने कि एंटी रिटेलिएशन रूल्स लाओगे कि कोई प्यूनिटिव ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हरासमेंट नहीं किया जाएगा। तीसरा, लीगल काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करोगे विसल ब्लोअर को। एंड पांचवा इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दोगे जब अप्रोप्रिएट होगा। जैसे अब मैंने बताया कि मान लो कोई विसल ब्लोअर है, उसने किसी बहुत बड़े फ्रॉड को अनकवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग आंसर में यूज करते हैं सत्येंद्र दुबे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियर थे। ही एक्सपोज्ड करप्शन इन हाईवे कॉन्ट्रैक्ट। हिज मर्डर shocked India and led to public demand for whistleblower protection। एक बार सत्येंद्र दुबे जी के बारे में सुनना, पढ़ना नेट पे। This case shows both the power of whistleblower and the danger they face। बहुत सारे honest officers, बहुत सारे anti corruption officers have exposed irregularities leading to inquiries, but they still showed that courage जो है ना वो मैटर करता है। And we need to know that why whistleblower protection is crucial for probity, because without प्रोटेक्शन ना पीपल विल स्टे साइलेंट, एंड विदाउट विसल ब्लोअर बहुत सारी स्कीम्स जो है ना वो छुपे के छुपे रह जाएंगे। सो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ना आर अ कोर पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम जो कि इनकरेज करेगा प्रोबिटी, राइट। एंड एक बात समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, दैट विसल ब्लोइंग इज नॉट डिसलॉयल्टी, इट इज लॉयल्टी टू पब्लिक इंटरेस्ट। प्लीज राइट दिस एंड यू कैन use this quote in your answer, that whistleblowing is not disloyalty, it is loyalty to public interest, to the public interest। कोई disloyalty थोड़ी है, ये तो loyalty है ना। हम किसके प्रति loyalty दिखा रहे, public service के प्रति, public interest के प्रति, right। And so I can very well conclude that whistleblower are front line defenders of probity। Protecting them is as important as punishing the corrupt, right। Now we will examine the citizen charter, a simple but powerful instrument to make public services predictable and accountable। सबसे पहला सवाल, what is a citizen charter? It is a public statement by a government department describing कि वो जो government department है वो क्या क्या services provide कर रहा है, वो services क्या क्या standards के होंगे with respect to time, with respect to quality, उन services को किस प्रकार से assess किया जाए, and अगर मान लो ये standard time को, ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी, ये टाइम को अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब कंप्लेन कहाँ किया जाए। सो थिंक ऑफ इट एज अ user manual for government services, right? So it is a public statement by a government department describing what services the government is providing, what services it provides, standards, how to assess them, where to complain when these standards are not met. If this is citizen charter, then what are the core elements for an effective citizen charter? कि भाई ये citizen charter effective है, उसके लिए क्या कुछ होने चाहिए। जैसे पहला क्या होगा, सबसे पहले क्लियर सर्विस स्टैंडर्ड, कि भाई पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है ना ये प्रोसेस हो जाएगा विद इन X डेज, आपने क्लियर कर दिया। दूसरा, एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर, कि हु कैन अप्लाई, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, है ना, तो एलिजिबिलिटी प्रोसीजर हो गया। तीसरा, टाइमलाइंस एंड सर्विस लेवल अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट्स, जहां पे वी टॉक अबाउट मेजरेबल टाइम लिमिट्स। चौथा, ग्रीवांस रिड्रेसल, कि आपको कंप्लेन कैसे करना है, यहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हो तो आगे आपको बात एस्केलेट कैसे करना है, एक्सपेक्टेड रिजोल्यूशन टाइम क्या होगा। पांचवा, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ट्रांसपेरेंसी, फोन नंबर्स, वेबसाइट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। छठा इज
monitoring and reporting, public dashboard that show performance, right? There are 6 principles UK model के हिसाब से for citizen charter: quality, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या है? सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। कोई एक ट्रिक बनाओ, याद करो एंड लेट मी नो दैट ट्रिक इन द कमेंट बॉक्स। नाउ you tell me why citizens charter strengthen probity, because these citizen charter ना they reduce discretionary power by making rules explicit, कि भाई हम तो रूल लिख के दिखा दिए ना कि ये नियम कानून है, ऐसे ऐसे समय लगेगा, ये आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम ये बात बता दिए तो कोई डिस्क्रिशनरी पावर तो कोई ऑफिसर दिखा नहीं सकता है, तो वो खत्म होगा तो दिस विल रिड्यूस द चांसेस फॉर ब्राइबरी, फेवरेटिज्म। दिस सिटीजन चार्टर कैसे प्रोबिटी को इंश्योर कर रहा है? तो ये सिटीजन चार्टर जो है ना, इट क्रिएट एक्सपेक्टेशन दैट सिटीजन कैन इन्फोर्स, कि भाई सिटीजन चार्टर में तो लिखा हुआ है कि आप 10 दिन में ये सर्विस डिलीवरी दे दोगे, फिर आप मुझे 60 दिन क्यों वेट करवा रहे हो? तो अगर आप मुझे 60 दिन वेट करवा रहे हो तो आई कैन वेरी वेल कंप्लेन ना। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे put the state on record. Officials cannot claim ignorance if service standards are written down, कि भाई ये स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, ये क्वालिटी मिलेगा, इतने टाइम पे आपको सर्विस डिलीवरी होगा। अगर ये चीज लिखा हुआ है तो फिर ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, दे कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स विद सिटीजन चार्टर, दैट दे आर रिटन इन लीगल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सो दे आर नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन सिटीजंस। राइट और रॉन्ग है ना जेन्युइन प्रॉब्लम। दे आर नॉट पब्लिसाइज्ड और एक्सप्लेन्ड। सिटीजन को पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट? सो इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस। कैसे? कि भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन सिटीजन ना। सिटीजन को पता ही नहीं है कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग या सैंक्शन नहीं है। अगर वायलेशन हो रहा है तो एंड ऑब्वियसली वायलेशन तो होगा ही ना, एंड होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सरकारी दफ्तर, डिपार्टमेंट। एंड फोर्थ थिंग इज नो इफेक्टिव ग्रीवांस इन्फोर्समेंट, कि आपने जो कंप्लेन करा वो कंप्लेन सिस्टम में रह के ही मर जाता है और कंप्लेन का कुछ होता तो है नहीं ना। दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स विद सिटीजन चार्टर। आपसे एक बार पूछा कि क्या, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि विसल ब्लोइंग के लिए एक विसल ब्लोअर को क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि कैसे एक इंस्टीट्यूट जो दफ्तर है, जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, उसको कैसे विसल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए। पढ़ा ना हमने ये। ठीक उसी प्रकार से हम आस्किंग यू कि हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव चार्टर। प्रॉब्लम क्या था कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप किसके लिए बना रहे हो? सिटीजन के लिए ना। तो आसान भाषा में बना लो। यूज सिंपल लैंग्वेज सो दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन अंडरस्टैंड। दूसरा, सेट करो ना रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। ओवर एम्बिशियस टाइमलाइन दैट कांट बी मेट आर काउंटर प्रोडक्टिव। भाई जो काम 10 दिन में होने का है उसको 10 दिन लिखो ना। क्यों मतलब 5 दिन 4 दिन लिख के ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? तो पहला सिंपल लैंग्वेज, दूसरा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड मल्टी चैनल ग्रीवांस ऑप्शन, कि भाई इस इंसान को प्रॉब्लम हुआ, ये इंसान इन पर्सन आके कंप्लेन कर सकता है, फोन के थ्रू कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, एसएमएस के थ्रू कर सकता है। 3 हो गया। चौथा, इंश्योर इंडिपेंडेंट रिव्यू, कोई ऑम्बड्समैन हो, थर्ड पार्टी ऑडिटर हो जो कि ये चेक करेगा, जो कि कंप्लायंस चेक करेगा। एंड द फिफ्थ वन इज पब्लिश द परफॉर्मेंस रेगुलरली थ्रू डैशबोर्ड, थ्रू लोकल नोटिस बोर्ड, थ्रू सोशल मीडिया। जैसे इंडियन एग्जांपल अगर देखें तो पासपोर्ट सेवा project, it introduced clear timelines, tracking numbers, grievance redress. This made passport delivery faster and more transparent. Also, many municipal services now have citizen charter but perform poorly due to weak enforcement, illustrating that a charter alone is not enough without monitoring. Now, you must write this in answer that good governance means citizens know what to expect and officials know what is expected of them. This is good governance, है ना? प्लीज राइट दिस डाउन। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस मीन्स सिटीजन को पता हो what to expect, citizens know what to expect, and officials know what is expected of them. And so a well-designed citizens charter converts the idea of probity into day-to-day service guarantees. Clear? Understood? Now let's talk about work culture. Please understand that probity is not only about laws and institution. It flows from work culture inside organization. हमारा जो culture है, culture very important, culture guides everyday choices. What people do when no one is watching, how teams treat mistakes, and whether shortcuts are tolerated, right?
So what is work culture? It's the shared norms, it's the shared values, habits and leadership behavior that shape how people behave at work. This is work culture. And what are the elements of friendly वर्क कल्चर? पहला, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, सीनियर ऑफिसर्स मस्ट मॉडल इंटीग्रिटी, है कि नहीं? उनको पंक्चुअलिटी दिखाना होगा, उनको ट्रांसपेरेंसी, उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना होगा। दैट इज लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, पहला एलिमेंट ऑफ प्रोबिटी फ्रेंडली वर्क कल्चर या एथिकल वर्क कल्चर। दूसरा, क्लियर रूल्स होंगे, एसओपीज होंगे, सिंपल वेल नोन प्रोसीजर। अगर ये होगा तो आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग में आपको कमी देखने को मिलेगा कि कोई भी आदमी कुछ भी डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज रूल्स आर क्लियर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। थर्ड इज ओपन कम्युनिकेशन, स्टाफ कैन रेज कंसर्न विदाउट फियर, है कि नहीं? अगर ओपन कम्युनिकेशन होगा स्टाफ कैन रेज concern without fear. चौथा, recognition and incentives for ethical behavior in form of awards, appreciation. पांचवा, separation of personal and official life. One more you can write elements of probity friendly work culture is independent इंटरनल ऑडिट एंड एचआर ह्यूमन रिसोर्स एक्शन। कैसा होगा? तो क्विक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिसिप्लिनरी सिस्टम होना चाहिए। नाउ व्हाई कल्चर मैटर्स मोर देन रूल्स अलोन? वो कल्चर जो है, वर्क कल्चर जो है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रूल can be bent. A culture of integrity makes bending harder. For example, if a senior staff routinely bypass rules, तो junior उनको copy करेगा। अब what are some practical signs of healthy ethical culture, healthy ethical work culture? क्या प्रैक्टिकल साइंस होंगे? जहां पे पीपल रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट फियर, जहां पे errors are discussed to learn, not to punish unnecessarily. लोग जहां पे प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर पाए बिना किसी डर भाव के, जहां पे एरर्स जो है उनको डिस्कस किया जाता हो, ना कि उस एरर के कारण पनिशमेंट दिया जा रहा हो, जहां पे ट्रांसफर, प्रमोशन क्लियर क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो, ना कि patronage. And what are some concrete steps for an organization to build a ethical work culture? So first thing which we can write is onboarding with ethics training. कि न्यू रिक्रूट जो नए ज्वाइनी है उनको सिर्फ ये ना बताया जाए कि क्या क्या प्रोसीजर इस इंस्टीट्यूट में फॉलो होते हैं, बट ये भी बताया जाए कि प्रोबिटी मैटर क्यों करता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एथिक्स चैंपियन होगा, मतलब कोई रेस्पेक्टेड ऑफिसर जो कि जूनियर को मेंटोर करे। रेगुलर टाउन हॉल्स जैसा कुछ कॉन्सेप्ट किया जा सकता है, जहां पे सीनियर ऑफिसर जो है वो क्वेश्चन को पब्लिकली आंसर कर रहे हैं। वर्क कल्चर का बात हो रहा है, आप विसल ब्लोअर वाला बात लिख सकते हो कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो, फास्ट इंटरनल इंक्वायरी टू हैंडल कंप्लेन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स मैटर, बट एथिकल वर्क कल्चर मेक्स प्रोबिटी सस्टेनेबल डे आफ्टर डे। सो वर्क कल्चर को इंप्रूव कैसे किया जाए? जो अभी हमने बताया वो। दूसरा, सेटिंग क्लियर गाइडलाइन, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, implementing zero tolerance policy for ethical violation, है ना? Clear. Now let's talk about corruption and financial integrity. The abuse of entrusted power for private gain is corruption. Now common forms of corruption, पहला, bribery, paying to influence a decision, for example to win a contract. दूसरा form of corruption is nepotism, cronyism, giving jobs or contract to friends, family rather than best candidate. Third is embezzlement or theft, diverting public funds to private use. चौथा form of corruption is ghost beneficiary, बहुत important, ghost employees, payment to non-existent person. पांचवा form of corruption is inflated invoice, fraudulent billings, कि खर्चा हुआ है 20 रुपए का दिखा रहे हैं 20,000 रुपए. Next is procurement collusion, for example bidders working together to fix prices. Now you tell me, what is financial integrity? It means fiduciary responsibility. Public officials must use funds economically, efficiently and for the intended public purpose. कि भाई पैसे को इकोनॉमिकली एफिशिएंटली यूज करना है, जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस के लिए यूज करना है. दिस इज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉपर्टी. एक्शन should not only be legal but also appear proper. That is no conflict of interest. कि ऐसा नहीं है कि कानूनन रूप से आपने ठीक किया तो ठीक किया, वो लगना भी चाहिए कि आपने ठीक किया. Now what are some principles to ensure financial integrity? पहला,
segregation of duties. Different people approve, record and pay. Avoid single person control. कि अलग अलग लोग अप्रूव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, पे करेंगे, उससे होगा अलग अलग लोग जो है वो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक पर्सन के हाथ में कंट्रोल नहीं है. दिस इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. दूसरा, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट. टेंडर करना है, ओपन करो, ई प्रोक्योरमेंट करो, पब्लिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को पब्लिक करो. थर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट ट्रेल्स. एवरी पेमेंट मस्ट हैव अ क्लियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि इतना खर्चा हुआ तो उसको लेके ये मेरे पास बिल है. चौथा, पब्लिक ऑडिट एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट. इंस्टीट्यूशंस लाइक सीएजी एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन करे स्पेंडिंग को. पांचवा, इंटरनल ऑडिट एंड चेक्स कि रूटीन इंटरनल चेक्स हो टू स्पॉट एनोमलीज अर्ली. छठा, डिजिटल पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को यूज किया जाए इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैश हैंडलिंग, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ये मिडिल मैन के कारण जो करप्शन हो रहा है. सेवेंथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट rules and asset declaration. Know who has what interest to prevent misuse. अब बात ऐसा है that how corruption typically unfold, ये भी हमें समझना पड़ेगा कैसे करप्शन को आप अनफोल्ड करो. तो जब कभी भी कोई सिंगल बिड टेंडर हो विथ नो कंपटीशन, इसका मतलब मामला में कुछ गड़बड़ है. दूसरा, रिपीटेड नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेम वेंडर. तीसरा, स्प्लिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू स्मॉलर बिड्स टू अवॉइड टेंडर थ्रेशोल्ड. चौथा, लैक ऑफ प्रॉपर रिसीट्स और मिसिंग डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, अब्रप्ट चेंज ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि किसी एक बिडर को फेवर कर रहा है. आर दीज थिंग इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल. यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज करप्शन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी. You just need to know the related keywords, that's it. You will be in position to write great answer. आपको ध्यान आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एक आया था मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एंड इसके बारे में मैंने आपसे 2-3 बार डिस्कशन कर लिया है. राइट, जस्ट ट्राई टू राइट दिस आंसर फ्रॉम एथिक्स पर्सपेक्टिव, है ना, क्योंकि आंसर में हमें एथिकल कीवर्ड्स डालने होंगे ना, तब तो वो आंसर एथिक्स का लगेगा. पहले उसको सिंपल गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में लिखना उसी सेम क्वेश्चन को, फिर उसको एथिक्स के रेस्पेक्ट में लिखना. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एथिक्स का आंसर कैसा होगा. जैसे मनरेगा के केस में देखेंगे तो सोशल ऑडिट्स होते हैं दैट वेरीफाई दैट वर्क वाज डन एंड पेमेंट्स मेड करेक्टली. ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे सिटीजन्स रिपोर्टिंग एंड मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारे फ्रॉड को अनकवर किया है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस ना, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पब्लिक फंड को इकोनॉमिकली एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करना है फॉर द इंटेंडेड पर्पस. कि जो स्पेंडिंग है वो सिर्फ लीगल नहीं दिखना चाहिए, वो होना भी चाहिए ना, एथिकल रूप से भी सही होना चाहिए. क्लियर? सो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ probity and vigilant people together prevent corruption and ensure public money जो है वो deliver करे public good को. Right? Now let's talk about some anti-corruption institutional mechanism. India has many watchdogs for probity. First one is Lokpal and Lokayuk. They probe high-level corruption. They investigate allegation of corruption against Prime Minister, Member of Parliament, high-ranking officials. इनके power अगर देखें तो wide-ranging of power to investigate, attach properties, recommend suspension of accused public servant. Central Vigilance Commission. They guide vigilance. They are chief technical advisor to government and exercise a superintendence over CBI in corruption cases, anti-corruption cases. CBI, premier investigating agency handling corruption cases and other high-profile matters. Similarly, CAG, they audits spending. ये सारे bodies कहाँ पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं GS पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी में. राइट, बट देयर आर सम चैलेंजेस जो कि इन सारे बॉडीज में आपको देखने को मिलेगा. लाइक लैक ऑफ कंप्लीट फंक्शनल ऑटोनॉमी, आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा. वीक ऑटोनॉमी, jurisdictional overlap, delays in investigation. And so you need to understand that watchdog institution na, they guard probity, but कब तक? Only when these institutions are independent. Clear? Now let's talk about e-governance, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में कहाँ GS पेपर 2 में पढ़ते हैं. Right? We have already seen what is governance, what is good governance, what is ethical governance. So क्या हो रहा है गवर्नेंस में? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं in order to simplify, in order to support the government processes, because technology strengthen probity. Why? How? By reducing discretion. कि एक इंसान का मनमानी खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, by increasing transparency. So इस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोबिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है. बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे? तो फास्टर सर्विस, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आ रहा है तो सर्विस फास्टर हो जाएगा. लेस ह्यूमन करप्शन. नेक्स्ट,
रिकॉर्ड्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार, फॉर एग्जाम्पल ई प्रोक्योरमेंट, फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा, डिजिटल इंडिया. बट देयर आर सम challenges like lack of infrastructure, digital illiteracy, लोग को पता ही नहीं है, digital divide, privacy concerns, security concerns, integration issues between government departments. Now you tell me in the comment box कि जब हम privacy का बात करते हैं तो आपको कौन सा article of the constitution याद आता है, कौन सा judgment याद आता है, right? So I can very well conclude that if this is probity, तो e-governance जो है, this e-governance जो है वो क्या है, इस probity का digital sealed है, right or wrong? Clear? So let's conclude this chapter. So abhi tak we have seen that probity is honesty plus integrity प्लस इनकरप्टिबिलिटी इन गवर्नेंस. प्रोबिटी अगर है तो ये बिल्ड करेगा ट्रस्ट को, इंश्योर करेगा फेयरनेस को, प्रोटेक्ट करेगा डेमोक्रेसी को. इट स्टैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट स्टैंड्स ऑन प्रिंसिपल्स लाइक ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी. It stands on tools like RTI, like codes in form of code of conduct, codes in form of code of ethics. It stands on tools like charters, citizen charters. It stands on institutions like Lokpal, like CAG. It stands on culture like ethical leadership. बिना probity के आपको स्कैम्स दिखेगा समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, डिस्ट्रस्ट दिखेंगे, कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम. अगर प्रोबिटी है तो ट्रस्ट दिखेगा, ग्रोथ होगा. डेमोक्रेसी के एसेंस का आपको सक्सेस दिखेगा. एंड ठीक एक बार मोदी जी ने कहीं कहा था that, just a second, that good governance with good intention is the hallmark of our government. आप ऐसे लिख सकते हो कि good governance with good intention should be the hallmark of a government. Implementation with integrity, good governance with good intention is hallmark. and दूसरा कहा था implementation with integrity is our पैशन. ये मोदी जी ने. तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर में कहीं भी कोट कर सकते हैं. नाउ एट लास्ट आई कैन कंक्लूड दैट प्रोबिटी इज नॉट optional for public servant. It is the bedrock of democracy. It is the bedrock of development. It is the bedrock of trust. Right? So यहाँ हमारा chapter 7 complete होता है. That is, अभी तक हमने chapter 1 से chapter 7 तक complete कर लिया है. आपका काम अभी होना चाहिए कि आप एक एक chapter के notes बनाओ, उसको n number of time revise करो, तब जाके कुछ sessions लिए जाएंगे on case study by sir, and तभी आपको वो केस स्टडी के सेशन समझ में आएंगे. बिकॉज ये केस स्टडी समझने के लिए प्री रिक्विजिट है. क्या है कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 7 थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, राइट? एंड फिर ये केस स्टडी का सेशन होगा एंड योर एथिक्स इज 100% कंप्लीट. यू आर डन विथ योर 250 मार्क्स, right? And very soon we are coming up with a compiled video जहाँ पे you can complete the entire ethics का theory वाला part in one sitting or two. एक बार में, दो बार में बैठ के आप पूरे ethics को complete revise कर सकते हो, right? And yes, our next foundation batch is starting from 12th of October. This is both for working professional and graduate, where you will see holistic coverage of GS prelims and main syllabus. The best highlighting part is आपको personalized mentorship मिलेंगे with regular prelims and mains test along with detailed evaluation. For further detail, you can call at these numbers. So that's all for this video. Thank you so much. Jai Hind.